Hi students, in this video lecture we are going to take very important point of the topic parabola, and the point is properties of focal chord. So आप सभी जानते हैं व्हाट इज द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. पैराबोला की फोकल कॉर्ड क्या होती है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोकल कॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जाम. And we will see the proof of all these properties. There are 6 properties of the parabola. So first I will define you or give you the definition of focal chord of the parabola. So see here, if this is the parabola y square equal to 4x, अगर ये मेरा पैराबोला है y square equal to 4x, then the focal chord of the parabola is the chord passing through the focus of the parabola. So if this is the parabola y square equal to 4x and this is the focus whose coordinates are a comma 0, आप सभी जानते हैं focus has coordinates a comma 0. So any chord passing through the focus of the parabola is called as focal chord. So now we will discuss the all 6 important properties of focal chord of this parabola. So let us see the first property of the focal chord of the parabola. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? If property number 1, first property for this parabola y square equal to 4x, if p of t1 and q of t2 are the endpoints of the focal chord, then t1 into t2 equal to -1. Read the property carefully. Here this is my focal chord. P and q are the endpoints of the focal chord having parameters t1 and t2. Then relation between t1 and t2 is t1 into t2 equal to -1. So we have to prove that t1 into t2 equal to -1. So the proof is very easy. तो पैराबोला का कौन सा भी जनरल पॉइंट है, अगर उसका पैरामीटर t है, इफ द पैरामीटर ऑफ एनी पॉइंट p इज t, तो आप सभी जानते हैं जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला हैज कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280, वेयर t इज द पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट p, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t वी विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला. लेकिन यहाँ पे एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड p एंड q है, उसके पैरामीटर्स t1 t2 है. So we will write the coordinates of these points. So point P has parameter T1, तो उसके coordinates हो जाएंगे 81 square 281, and the point P has parameter T2, so coordinates of the point Q are 82 square 282. Okay, if parameter is T, coordinates are 80 square 280. लेकिन यहाँ पे पैरामीटर t1 t2 दिए हैं, एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड pq, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 81 स्क्वायर 281 एंड 82 स्क्वायर 282. अगेन फोकस हैज कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0. नाउ दिस 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं. सो हियर पॉइंट्स p s q r कोलिनियर. तो कोलिनियर की कंडीशन यूज करते हैं. अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ एस पी पॉइंट पी एस क्यू अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ एस पी विल इक्वल टू स्लोप ऑफ एस क्यू. सो स्लोप ऑफ एस पी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस क्यू. ओके, so we will write the slope of sp. So here s has coordinates a comma 0, p point has coordinates 81 square 281, slope of line passing through 2 points x1 y1 and x2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So slope of sp will be 281 minus 0, 281 upon 81 square minus a is equal to, now slope of sq, q point has coordinates 82 square 282 and focus has coordinates a comma 0. So again y2 minus y1, so it will be 282 minus 0 upon 82 square minus a. So now we will simplify this.
and we'll get the relation between T1 and T2, which are the parameters of the points P and Q are the ends of the focal chord. So here students, so here 2a will get cancelled, so T1 by this 2a and this 2a will get cancelled, taking a common, so it is T1 square minus 1 is equal to T2 by a into T2 square minus 1. Okay, so this a will also get cancelled. Now by cross multiplication we will get T1 into T2 square minus 1 is equal to T2 into T1 square minus 1. So T1 into T2 square minus T1 is equal to T2 T1 square minus T2, and T1 T2 square minus T2 T1 square is equal to T1 minus T2. Taking T1 T2 common, we will get T2 minus T1, taking minus 1 common. This is also T2 minus T1. So T1, P and Q are the different points. So T1 and T2 are also different. T1 is not equal to T2. So therefore, T1 minus T2 is not equal to 0. So we will divide by T1 minus T2 minus T1. So after that, we will get T1 into T2 equal to minus 1. So this is the first property of the focal chord of the parabola, that if P of T1 and Q of T2 are the ends of the focal chord of the parabola, then relation between T1 and T2 is T1 into T2 equal to minus 1. तो इस पॉइंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? अगर मेरा पॉइंट P है, here relation is T1 into T2 equal to minus 1. So T2 is minus 1 by T1. Okay, so if the parameter of point P is T, then Q पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा? Q पॉइंट का पैरामीटर ऐसा होगा कि जिससे T1 को मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आना चाहिए. सो इफ T is the parameter of point P, Q has parameter -1 by T. Okay, so this is the important point, that is the important property of the focal chord of the parabola, that if T1 and T2 are the end points of the focal chord, then T1 into T2 equal to -1. So let us see the next property number 2. So see the next property number 2 of the parabola, and in this property we have given that for the parabola y square equal to 4x, see the property number 2. For the parabola y square equal to 4x, property number 2, for the parabola y square equal to 4x, if P of T is one end of focal chord, if P of T is one end of focal chord PQ, then the length of the focal chord is given by A into T plus 1 by T whole square. See the property carefully. So here I have given again one parabola y square equal to 4x. This is my property number 2, and focal chord PQ is given. Focal chord PQ is given, and parameter of point P is T. Parabola has equation y square equal to 4x. ओके, तो इस पॉइंट P का पैरामीटर अगर T है एंड PQ अगर फोकल कॉर्ड है, तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ ऑफ PQ इज A इंटू T प्लस 1 by T होल स्क्वायर. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड. अगर हमें P पॉइंट का पैरामीटर पता है T, तो हम डायरेक्टली फोकल कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द फार्मूला इज A इंटू T प्लस 1 by T होल स्क्वायर. सो लेट अस स्टार्ट टू प्रूव दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. सो just we have seen in property 1 that if this point P has parameter T, and if Q is the another end point of focal chord, then Q point has parameter -1 by T.
P पॉइंट का पैरामीटर अगर T है तो Q पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा, -1/T. So we will write the coordinates here. So P of T has coordinates 80 square 280, and now we have the point Q whose parameter is -1/T. तो उसके coordinates we have to replace this T by -1/T. अगर T पैरामीटर है तो कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 है, तो -1/T पैरामीटर होगा तो T को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा -1/T से. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विल बिकम a/T स्क्वायर, T इज रिप्लेस्ड बाय -1/T, तो A बन जाएगा y कोऑर्डिनेट -2a/T. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ एंड PQ इज द फोकल कॉर्ड. PQ इज focal chord passing through the focus, and focus of this parabola y square equal to 4x is a comma 0. Now we will use the basic property of the parabola, definition of the parabola. Parabola is the locus of a point whose distance from a fixed point and a fixed line is constant. So if I draw the directrix of the parabola, and directrix of the parabola has equation x equal to -a, I have to find the length of PQ. For that first I will find SP and then I will find SQ. So then SP plus SQ will give PQ. So by the focus directrix property of the parabola, if we draw perpendicular from point P on directrix D PM, so SP will become PM, SP equal to PM. And if I draw perpendicular from point Q on directrix D QN, so this SQ पैराबोला के किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस उसके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सेम होता है. सो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. So this SP is PM and this SQ will be QN. ओके, अब मुझे SP डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है. तो SP डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो उस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, x1, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल टू a. So this PM will be equal to x1 plus a. x1 plus a. So here x1 is 80 square. x1 क्या है, 80 square. Like this we will get the SP distance 80 square plus a. Now we have to find the distance SQ. So SQ distance QN distance के इक्वल है. तो उसके अगर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो Q पॉइंट का y एक्सिस के साथ डिस्टेंस कितना होगा, x2, एंड अगेन दिस डिस्टेंस इज a, एज दिस लाइन इज पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस बनेगा x2 प्लस a, x2 प्लस a. लेकिन फॉर पॉइंट Q x2 इज व्हाट, a/t स्क्वायर. सो इट इज a/t स्क्वायर प्लस a. Okay, so like this we have SP equal to a into t square plus 1 and SQ is equal to a कॉमन लेते हैं 1 plus t square by t square. Okay, now we have to find the length PQ. So length of PQ is equal to SP plus SQ. Length of PQ is SP plus SQ, where SP is what, a into t square plus 1, and what is SQ? SQ is a into 1 plus t square by t square. So taking a common लेते हैं, t square plus 1, so t square by t square 1 plus 1 by t square, इसको सेपरेट कीजिए t स्क्वायर को. सो दिस इज a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ t प्लस 1 बाई टी. सो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ इज a इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर.
So this is the length of PQ. So this is the second property of the focal chord of the parabola, y square equal to 4x. अगर P पॉइंट PQ फोकल कॉर्ड है और P पॉइंट का पैरामीटर हमें दिया है T, तो इस फोकल कॉर्ड PQ की लेंथ होगी A इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर. So this is the most important formula to find the length of the focal chord, and this was the property number 2. Now we will see the next property number 3. Property number 3 of this parabola y square equal to 4x of the focal chord. So here to find the third property of the focal chord of the parabola y square equal to 4x, तो third property क्या है? See the third property of the parabola. We have given that if PSQ is the focal chord of the parabola, अगर parabola y square equal to 4x की focal chord PSQ है, तो 1/SP plus 1/SQ is equal to 1/A, and also semi-lattice rectum is harmonic mean of SP and SQ. Okay. So this is the given parabola y square equal to 4x. This is the given parabola y square equal to 4x. So PSQ is the focal chord, PSQ is the focal chord, PQ focal chord है, यानी ये फोकस से ही पास होगी, passing through the focus. Yes. So here focus has coordinates s, 0. So we have to prove that 1/SP plus 1/SQ इक्वल टू 1/A, और इसे ही सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्रूफ करने का है कि सेमी लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज हार्मोनिक मीन ऑफ दिस SP एंड SQ. तो हम सब जानते हैं लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. पैराबोला की लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होती है? 4A. फुल लेंथ ऑफ दिस लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम जो होती है दैट इज़ द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 4A. तो सेमी लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? 2A. तो इसी से हमें प्रूफ करने क्या है कि दिस length of semi-lattice rectum is harmonic mean of SP and SQ. So that is we have to prove that this semi-lattice rectum is 2 times SP into SQ upon SP plus SQ. So this is the relation of harmonic progression, and 2A is harmonic mean of SP and SQ. So both results are same. So now how to prove that 1/SP plus 1/SQ equal to A? तो इसके पहले की प्रॉपर्टी देखिए, उसी के रिजल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे. अगर ये पॉइंट P है, उसका पैरामीटर T है, तो फोकल कॉर्ड के दूसरे पॉइंट का पैरामीटर Q, उसका पैरामीटर Q पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा? -1/T. इस पॉइंट का पैरामीटर क्या होगा? -1/T. एंड P पॉइंट का पैरामीटर T, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए AT² 2AT, और SP का डिस्टेंस, सीधा अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 हुए उसमें SP डिस्टेंस इज PM. तो PM क्या था अपना? AT² प्लस A, x1 प्लस A. तो A बन गया A इंटू T² प्लस 1. ओके. अब SQ डिस्टेंस, तो SQ के लिए Q से हमने परपेंडिकुलर डाला था, SQ इक्वल टू QN. तो QN कितना मिला था हमें? उसका भी x2 प्लस A. तो इसका x2, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? सो Q ऑफ -1/T, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए A/T² माइनस 2A/T. तो इसका x2 क्या है? A/T². फॉर पॉइंट P फोकल डिस्टेंस इज AT² प्लस A. फॉर पॉइंट Q A/T² प्लस E. ओके. सो टेकिंग A कॉमन, A फिर से बन जाएगा 1 + T²/T². तो हमें SP मिल गया है, SQ मिल गया है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये प्रूफ कर सकते हैं. सो टू प्रूव दिस वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ SP एंड SQ इन द LHS.
तो मेरा एस पी है ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस पी है ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इज एस क्यू, ये है एस क्यू। तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखने का है, तो ऊपर टी स्क्वायर जाएगा, नीचे आ जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो हियर डिनोमिनेटर इज सेम, सो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर बाय a into 1 plus t square, so 1 plus t square will get cancelled, equal to 1 by a. So therefore 1 upon sp plus 1 upon sq equal to 1 by a. So the statement is very important and this formula is also very useful to solve the problems of this type. तो किसी प्रॉब्लम में sp sq देते हैं, a पूछते हैं, तो किसी प्रॉब्लम में पैराबोला का इक्वेशन देंगे, उसमें से आपको ए मिलेगा, एस पी देते हैं तो एस क्यू फाइंड आउट करने को बोलते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये मिलेगा एस पी प्लस एस क्यू अपॉन एस पी इंटू एस क्यू इक्वल टू 1 बाय ए। ओके, एंड टेकिंग रेसिप्रोकल एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू is equal to a and multiplying by 2 on both side, तो यहाँ पे बन जाएगा 2a और a 2a क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। सो देयरफॉर सेमी लेटस रेक्टम इज harmonic mean of segments of the focal chord. ASP and SQ are also called as the segments of the focal chord. ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में का स्टेटमेंट क्या है, अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है और यस फोकस है तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1 बाय ए होता है, एंड सेमी लेटस रेक्टम 2a इज हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 of the focal chord of the parabola. So see and read the next property of the focal chord, and in this property we have to find again length of the focal chord of the parabola, लेकिन condition अलग है। Here we have to find the length of the focal chord of the parabola if angle made by focal chord with x-axis is theta. If angle made by focal chord PQ अगर focal chord है, and if this focal chord is making angle theta with x-axis, then length of the focal chord is given by 4a cosec square theta. So what is the next property of the parabola? This is my parabola y square equal to 4ax. Okay, this is the focal chord PQ and this is the focus. Yes, if angle made by this focal chord with positive direction of x-axis is theta, अगर ये एंगल थीटा है तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या होगी, 4a into cosec square theta. ओके, सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हमें फोकल कॉर्ड ने एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल दिया है, देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड पी क्यू एंड द फार्मूला इज 4a into cosec square theta. तो जस्ट इन प्रॉपर्टी नंबर 2 वी हैव फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। अगर इस पॉइंट P का पैरामीटर T है और PQ फोकल कॉर्ड है, तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ PQ इज गिवन बाय a into t plus 1 by t होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज द बेसिक फार्मूला टू प्रूव दिस, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है इंक्लिनेशन, तो इसका हम पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ यानी SP का स्लोप क्या होगा, tan थीटा। सो हियर P पॉइंट हैज़ पैरामीटर T, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 80 स्क्वायर 280। ओके, एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0।
तो यहाँ से भी हम स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एस पी, वो तो पहले से tan थीटा है। ओके, अब स्लोप ऑफ एस पी विल बी 280 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 80 स्क्वायर माइनस ए कॉमन t स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। सो दिस ए विल गेट कैंसल, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। ओके, अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। सो कॉट थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉट थीटा, टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी, और 2 को इधर भेज देता हूँ। सो टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी इक्वल टू 2 कॉट थीटा। सो 2 कॉट थीटा इज टी माइनस 1 बाई टी। ओके, लेकिन लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला मेरे पास पहले से ही है। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज गिवन बाय ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस टी इंटू 1 प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर एज टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, सो टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सो ए इंटू, अब इसमें टी माइनस 1 बाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरा टी माइनस 1 बाई टी कितना है, 2 कॉट थीटा। सो इट इज़ 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4। सो टेकिंग 4 कॉमन, इट इज़ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ए बन जाएगा 4a इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज वॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, तो फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन अगर थीटा होता है तो उस फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। देखिए इसमें सभी फॉर्मूलेज, लेकिन फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद रखते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम जा सकता है। सो प्लीज़ राइट ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक और इसे समझ लीजिए, ध्यान में रखिए। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट important property of the focal chord of the parabola, property number 5. That property is also very important. तो आपको बोर्ड पे प्रॉपर्टी नंबर 5 दिख रही होंगी। रीड द प्रॉपर्टी केयरफुली, प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से पढ़िए। व्हाट इज गिवन फॉर एनी पैराबोला, किसी भी पैराबोला में सर्कल ड्रॉन ऑन focal length as diameter touches the tangent at the vertex। किसी भी पैराबोला में अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं टेकिंग फोकल लेंथ एज डायमीटर, तो वो सर्कल उस पैराबोला के टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच होगा। तो हम पैराबोला कंसिडर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सी दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, एंड दिस इज द फोकल कॉर्ड P, ये पॉइंट S फोकस, दिस इज Q। अब प्रॉपर्टी क्या कही थी, ध्यान से समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकल लेंथ यानी फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ यानी फोकल डिस्टेंस। तो ये P पॉइंट का फोकल डिस्टेंस SP है। अगर मैं इसे डायमीटर कंसिडर करके सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इफ P S is the diameter of this circle, then this circle will surely touch the tangent at the vertex। ओके, तो इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये वर्टेक्स है ओरिजिन, तो वहाँ पे टेंजेंट क्या है, y एक्सिस। तो मुझे प्रूफ करने क्या है कि दिस सर्कल विल टच द y एक्सिस, ये सर्कल y एक्सिस को टच होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करने का है। तो क्या करना चाहिए, देखिए P पॉइंट के पैरामीटर्स, इस P पॉइंट के पैरामीटर में T कंसिडर करता हूँ, पैरामीटर T, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 हो जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है a,0, तो PS क्या है, डायमीटर, उसी को हमको डायमीटर कंसिडर करने का है। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकल डिस्टेंस, दिस SP,
So PS is diameter of the circle. Okay, तो diameter के end points हमें पता है. So we will find the center of this circle. So let C be the center of the circle. Let C be the center of circle. तो C will be the midpoint of SP. C क्या होगा? SP का मिड पॉइंट होगा. तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. सो मिड पॉइंट फार्मूला इज x1 प्लस x2 बाई 2. सो 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 280 प्लस 0 280 बाई 2, तो ये बन जाएगा 80. ओके, सो इस तरह से मुझे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 80. राइट, सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंटर ऑफ द सर्कल. अब किसी भी सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा. अगर सर्कल किसी लाइन को टच करता है या अगर ये टेंजेंट है तो उस टेंजेंट का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? रेडियस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? रेडियस. तो यही कंसेप्ट मुझे यूज़ करने की. अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को यानी टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच होगा तो उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस इतना आना चाहिए. सो इफ़ वी ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस. ओके, अगर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो C पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? x1. सो इफ C1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, C1 इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. ओके, तो CM का डिस्टेंस कितना होगा? x1. तो x1 यानी दिस इज x1 y1. x1 यानी कितना होगा? a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. सो दिस इज द लेंथ ऑफ CM. ओके, अब a परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया है. अब मुझे इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने का है. तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे SP डायमीटर पता है. तो पहले मैं डायमीटर फाइंड आउट करूँगा. P के कोऑर्डिनेट्स और S के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं. सो P पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280. फोकस के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास a, 0. तो मैं फाइंड आउट करूँगा SP. SP क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 80 स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. टेकिंग a स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर. सो अगेन इट इज़ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab. तो ये किसका स्क्वायर होगा? दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1. तो SP हमें मिल गया है. SP क्या है? डायमीटर. एंड इफ दिस इज द डायमीटर, SP इज द डायमीटर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? इसके हाफ होगी. सो a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. सो दिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट and this is the radius of the circle. So from 1 and 2, from 1 and 2 देखिए a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस. तो इस सर्कल का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है. इसका मतलब ये सर्कल इस y एक्सिस को टच होती है. सो सर्कल ड्रॉन ऑन द फोकल लेंथ ऑफ एनी पैराबोला विल श्योरली टच द टेंजेंट एट द वर्टेक्स. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. दिस इज फॉर एनी पैराबोला. किसी भी पैराबोला में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड नाउ विल प्रूव द नेक्स्ट and the last property of the parabola, property number 6. That property is also very important. See and read the statement of the
प्रॉपर्टी केयरफुली। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6, फॉर एनी पैराबोला, किसी भी पैराबोला के लिए सर्कल ड्रॉन और डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल कॉर्ड। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें दिया था कि सर्कल ड्रॉ किया है एज अ डायमीटर फोकल लेंथ। अब यहाँ पे डायमीटर होगा सर्कल का फोकल कॉर्ड, पूरी फोकल कॉर्ड डायमीटर होगा। सो दैट सर्कल इज टचिंग द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट property of this focal chord, very very important property, and this is the last property of this parabola, y square equal to 4x। property number 6 क्या कहती है? property number 6, for any parabola, read the statement carefully। अगर ये मेरा फोकल कॉर्ड है PQ, अगर मैं इससे डायमीटर कंसिडर करके सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो सर्कल इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को टच होगा। सो दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ए ओरिजिन। इफ़ आई ड्रॉ अ सर्कल, उसका डायमीटर क्या है? PQ। PQ इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देन दिस सर्कल विल श्योरली टच द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच होगा। स्टेटमेंट फिर से देखिए, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज डायमीटर इज टचिंग द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, तो इसको हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे। ये मेरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये पॉइंट T एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टी फोकल कॉर्ड की चालू है, ऑल द प्रॉपर्टीज आल अबाउट फोकल कॉर्ड, तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। इसका पैरामीटर t, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? -1/t। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p के कोऑर्डिनेट्स हो गए AT² 280, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a/t² -2a/t। एंड pq क्या है? pq क्या है? डायमीटर। pq क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर की लेंथ निकाल लेते हैं। वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। सो लेंथ ऑफ द डायमीटर PQ विल बी बाय डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा AT² माइनस a/t² का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस, इसकी ज़रूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ अपने पास ऑलरेडी है। So if this parameter of this point P is T, then length of PQ, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने प्रूफ किया था। तो फिर से हम वही कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला है अपनी तरफ, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या है? a × t + 1/t होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ, if this parameter point P is T, then length of the focal cord is this। तो ये PQ है डायमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी सर्कल की? इसके हाफ, यानी a × t + 1/t होल स्क्वायर बाय 2। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मुझे प्रूफ करने क्या है कि ये सर्कल इस डायरेक्ट्रिक्स को टच होता है एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला इज x = -a। तो इसका सेंटर हम C कंसिडर करते हैं। अब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सेंटर C विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। सेंटर C by midpoint formula AT² + a/t² x1 + x2/2 AT² + a/t² 2 y1 - y2/2। सो ये बन जाएगा 2AT माइनस प्लस 2AT, सॉरी y1 + y2, तो ये माइनस ही होगा अपॉन 2। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट देखते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? a × t² + 1/t²/2, और y कोऑर्डिनेट जो है वो है, y कोऑर्डिनेट का इसमें कुछ काम नहीं है। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर C ऑफ दिस सर्कल। अब
अगर ए पॉइंट x1, y1 है तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस होगा x1, राइट, और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा a, तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, cm परपेंडिकुलर टू व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स, cm इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो cm का डिस्टेंस कितना होगा, cm का डिस्टेंस देखिए x1 प्लस ए, x1 प्लस ए, तो x1 यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, तो c का x कोऑर्डिनेट a है, a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t² बाय 2 प्लस अगेन दिस a, तो ये बन गया cm। तो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच होगा, एक कैसे प्रूफ करेंगे, जब हम सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm विल बी इक्वल टू रेडियस इतना आना चाहिए। सो वी विल सॉल्व दिस, a कॉमन, तो ये बन जाएगा t² प्लस 1/t² बाय 2 प्लस 1, सो a इंटू दिस विल बी t² प्लस 1/t² प्लस 2 बाय 2, सो दिस विल बी a इंटू, अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर है, लेकिन दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ व्हाट, t प्लस 1/t होल स्क्वायर एंड अपॉन 2, सो दिस इज द रेडियस एंड cm इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर circle drawn on focal chord of the parabola is touching the directrix of the parabola, and these are very 6 important properties of the focal chord of the parabola. So all the properties are very important. See the first property, in short सभी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है, पी और क्यू के पैरामीटर्स t1 t2 है तो t1 t2 -1 होगा। अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है, पी का पैरामीटर t है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होगी a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो 1/sp प्लस 1/sq इक्वल टू 1/a, और 2a दैट इज द सेमी लेटरस रेक्टम विल बी द हार्मोनिक मीन ऑफ sp एंड sq। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन थीटा है, फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन थीटा है तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या होगा, 4a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी पैराबोला में फोकल लेंथ को डायमीटर कंसिडर करके सर्कल ड्रॉ करते हैं तो दैट सर्कल विल टच द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं फोकल कॉर्ड को डायमीटर कंसिडर करके तो दैट सर्कल विल श्योरली टच द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो स्टूडेंट्स, these are very 6 important properties of the parabola. So now we will stop here and we will again meet with some new videos and new tricks for JEE. Okay students, bye.